Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. Our today's topic is AC generator. AC generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy. It was designed by Yugoslav scientist Nikola Tesla. It is also known as AC dynamo or alternator. So before discussing the AC generator, you must have the knowledge of what is AC. AC क्या होती है? AC is also known as alternating current. It is the current whose magnitude changes with the time and direction reverses periodically. ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करे और डायरेक्शन आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, उसे हम बोलते हैं एसी. It is represented, AC is represented as sine or cosine function of time, that is I is equal to I naught sine omega t or I is equal to I naught cos omega t. Here I is the instantaneous value of AC. This is the value of current at any instant of time, at any instant t, instantaneous value of AC. I naught is peak value of AC. It is also known as amplitude of AC. Amplitude of AC. Omega is angular frequency of AC. And omega, you know, omega is equal to 2 pi upon t. Here capital T is the time period of AC and it is the time after which the cycle of AC can repeat. Now it can also be represented in such a way. Here is the time axis. Suppose we take the current along this axis. This is the positive variation. Here is the negative. So the variation of AC can be shown in such a way. Here this is the peak value, I naught. It is also known as the amplitude of AC. This is the time period of AC. Now this is half T by 4 and this is 3 T by 4. So with the time, here the value of current is 0 and it increases with the time. As it goes on increasing, here it becomes maximum here at this time and then again decreases, becomes 0. Now it again increases but in the reverse direction, in the opposite direction. It becomes maximum and again decreases to 0. This cycle goes on repeating. ये cycle आगे फिर ऐसे ही repeat होती जाएगी. So this is the representation of AC. So let us start now again with the AC generator. So as I have already explained, AC generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy. And the principle of AC generator is the phenomena of electromagnetic induction. It is based on the phenomena of EMI. The electromagnetic induction is the phenomena of production of induced EMF or current in a coil as a result of change in magnetic flux or magnetic field linked with the coil. Now here in this AC generator, we use the Fleming's right hand rule to represent the direction of induced current. And the Fleming's right hand rule is if we sketch our forefinger, this is my right hand and this is the forefinger. It is the central finger and this is the thumb. Now if we sketch the forefinger, central finger and thumb of my right hand mutually perpendicular to each other. जैसे मैंने इसको mutually perpendicular. Here is the angle between thumb and forefinger is 90 degree. Here the angle between forefinger and central finger is 90 degree. If we sketch them mutually perpendicular to each other such that forefinger points in the direction of magnetic field
and the thumb points in the direction of motion of conductor, then the direction of the central finger gives the direction of induced current. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी क्या करते थे हम, वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली, और वहां भी हम जब हम बात करते थे तो जो हमारी फोर फिंगर है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हम क्या होता था, वहां हम फोर्स फाइंड आउट करते थे करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते थे। जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेस किया हुआ है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, देन द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, दैट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, हमारे पास फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में। थंब जो है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यू आल्सो नो द मोशन इज ड्यू टू फोर्स, बिल्कुल वैसे ही नीचे में आ रहा है मोशन ऑफ कंडक्टर। then central finger gives the direction of induced current. It is known as Fleming's right hand rule. So the basic principle of AC generator is the phenomena of electromagnetic induction and the use of Fleming right hand rule to represent the direction of induced current. The construction of AC generator is the main thing, how the AC generator was designed. It consists of four main parts. इसके जो four main parts होते हैं construction में, that is first one is armature. Armature is a rectangular coil. It is a rectangular coil. Rectangle shape में coil होती है, rectangular coil. It is made of insulated copper wire. Copper wire की बनी होती है insulated, and it is bonded over a laminated soft iron core. जैसे मैं rectangular coil, इस coil का नाम हम ABCD रखते हैं और भी PQRS भी रख सकते हैं। और इस coil का जो बनी होती है ये, it is made up of insulated copper wire and bond over laminated soft iron. और जैसे मैं इन शॉर्ट इसको मैं बना रहा हूं इस तरह से ये डिजाइन होती है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD। इट इज बाउंड ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इस तरह से ये हमारे पास एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है। ये बीच में हमने सॉफ्ट आयरन कोर ली हुई है और ये हमारे पास ABCD एक हमारे पास आर्मेचर है। दिस इज आर्मेचर, दिस वन आर्मेचर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज आफ्टर आर्मेचर there are two strong poles of permanent magnet. They are known as field magnet. Field magnets are the two poles of permanent magnet NS in which this armature coil is placed. हमने फील्ड मैग्नेट के बीच में प्लेस की होती है। जैसे एक पोल मान लो N है, दूसरा पोल क्या है S है, नॉर्थ साउथ, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू नो इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन सच अ वे, इस तरह से होगी। थर्ड पार्ट इज स्लिप रिंग्स।
slip rings. Slip rings are, there are two rings, R1 and R2. R1 and R2 दो रिंग्स होते हैं, ये मेटल के होते हैं, विच आर कनेक्टेड टू द आर्म्स ऑफ द आर्मेचर, जो कि आर्म्स ऑफ द आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होते हैं. जैसे एक रिंग ये है R1, सपोज इसका नाम रख दिया, ये रिंग है R2. तो ये रिंग R1 जो है इट इज कनेक्टेड विद द आर्म AB ऑफ द आर्मेचर, और ये जो रिंग R2 है it is connected with the arm CD of the armature. Now when the armature rotates, these rings also they have the movable contact. ये movable contact है, ये इन rings के साथ क्या होता है, rotate करता है. और fourth part is brushes. Brushes have the fixed contact. These are the two metallic plates B1 and B2. इस तरह से ये brushes होते हैं, B1 और दूसरे ब्रश का नाम होता है B2. ब्रश B1 के थ्रू जो रिंग R1 में आर्म के थ्रू जो करंट आएगा उसे ये एक्सटर्नल सर्किट में लेके जाएगा, जिसकी जैसे मान लो मैंने यहाँ एक्सटर्नल सर्किट में क्या है, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसके अक्रॉस में क्या लेना चाहता हूँ, आउटपुट लेना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ सपोज. तो ये हमारे पास ये जो रिंग है इसके थ्रू रिंग R1 के थ्रू या तो करंट एंटर करेगा या फिर लीव करेगा, यानी ब्रश B1 के थ्रू एंटर करेगा या B2 के थ्रू एंटर करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन कि आर्म ऑफ द आर्मेचर कौन सी जो है दैट मूव्स इन बट ओरिएंटेशन इन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यू नो व्हेन दिस आर्मेचर रोटेट्स what will happen, there is a change in the magnetic flux across the armature coil. Why? Because there is a uniform magnetic field from north to south, and suppose this is the armature coil. तो ये armature coil जैसे rotate करेगी तो ये जैसे ये rotate करेगी तो during rotation the angle or the magnetic flux और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू, क्योंकि जैसे ये ऐसे है तो इट इज अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस क्या करेंगे, मिनिमम होगी. जैसे ये रोटेट करेगी इट इज सपोज इट इज परपेंडिकुलर है, तो ये इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस जो करेंगे दे बिकम मैक्सिमम. जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि चेंज चाहिए हमें, चेंज जैसे ही बढ़ेगा तो ये आगे फिर ये रोटेट कर रहा है तो फिर ये इस तरह से ये आर्मेचर कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगी ड्यूरिंग रोटेशन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस. So due to change in magnetic flux, there is the production of induced EMF across the coil or induced current through the coil, and that is known as AC because it is the bearing current. It continuously changes with the time and direction reverses periodically. That can also be explained by the separate two diagrams. Now let us start the working of AC generator. Suppose this armature coil is placed such that the arm AB is at front and CD is at the back, and we know the direction of magnetic field is from north to south, and this armature coil rotates in एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. जैसे ये है, ये मान लो हमारे पास आर्मेचर है, ये दो मैग्नेट, इधर एक मैग्नेट है, इधर मैग्नेट का पोल रखा हुआ है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है. जब ये इनिशियली ऐसे है तो ये जो इसकी जो प्लेन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ आर्मेचर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. In that case, the magnetic flux linked is minimum. Now, suppose this armature coil rotates. When this armature coil rotates in the anti-clockwise direction, the arm AB, this arm suppose AB and this is CD. तो arm AB moves inward. जैसे मैं अपने लिए देख रहा हूं तो मेरे लिए कहां मूव करेगी, इनवर्ड मूव कर रही है. अगर मैं राइट हैंड रूल को अप्लाई करूं तो ये हमारे पास जो फोर फिंगर है it points in the direction of magnetic field, and
this thumb points in the direction of arm AB, the motion of the arm AB, then the central finger gives the direction of current. So the current in the arm is from B to A. It means it enter through the ring R1 in the brush B1 and through external circuit or a load resistance R in such a direction. अब हम आर्म सीडी की बात करें उसी वक्त, तो आर्म सीडी क्या कर रही है? इट मूव्स आउटवर्ड डायरेक्शन में. कैसे मूव कर रही है? इस तरह से मूव कर रही है. ये आउटवर्ड डायरेक्शन आगे ऐसे ये मूव कर रही है. तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है. अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो करंट इन फ्लोज फ्रॉम डी टू सी. इट मींस द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट और इन द आउटपुट इन सच अ डायरेक्शन. और जैसे ये कॉइल रोटेट कर रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे मैं इन शॉर्ट इसको बनाऊं तो हमारे पास ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल जो आर्मेचर है इट मेक्स विद एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे मान लो एट एनी इंस्टेंट ये आर्मेचर ऐसे हमारे पास इस पोजीशन पे आ गई और तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? दैट इज अराउंड दिस डायरेक्शन. अब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ armature is this. This is the normal. This is armature. So here the angle between the normal and the normal to the plane of armature and the magnetic field is this, and that is equal to theta. And you know the magnetic flux link with this armature depends upon the number of turns. Suppose we n are the number of turns of armature. A is area of each turn. Area of each turn. B is strength of magnetic field across the armature. Then magnetic flux. Magnetic flux linked with armature, with coil या with armature. क्या होगा? phi. Phi is equal to n b vector dot a vector. मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. Now the magnetic flux is linked with the each turn. Magnetic field is linked so n times होगा ये. और मान लो इन दोनों के बीच में आपने अभी देखा एंगल कितना है? थीटा है. तो ये क्या बन जाएगा? एन बी ए कॉस ऑफ थीटा. नाउ सपोज ये जो आर्मेचर कॉइल रोटेट कर रही है इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है. ओमेगा क्या है? इसकी एंगुलर स्पीड है रोटेशन की. एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर ऑफ द कॉइल. तो हमारे पास ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा थीटा अपॉन टी. इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी. नाउ हियर वी पुट then phi becomes n b a cos omega t. This is the magnetic flux linked with the coil at any instant of time. You know by Faraday law of electromagnetic induction what is the induced EMF produced? Induced EMF is equal to minus d phi upon dt. This is the magnetic flux change and induced EMF produced. It was given by Faraday. So by putting the value here, phi की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देगा हम n b a cos omega t. अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. n b a कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा माइनस n b a और cos omega t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dy dt ऑफ cos omega t. इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहा हूं. इससे पहले मैं आगे में नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं. हमारे पास जो कॉइल की रोटेशन से एंगल चेंज हुआ. एंगल चेंज होने से क्या हुआ? फ्लक्स चेंज हुआ. फ्लक्स चेंज होने से क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो एन बी ए कॉस थीटा. और थीटा जो एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. अब अगर एंगल जीरो है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा. क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है. और अगर वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट बिकम्स जीरो. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कितना होता है? जीरो होता है. और जैसे हम डेविएशन की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पर मैं आपको वेरिएशन शो कर रहा हूं। जैसे हमने पीछे बताया था कि एसी कैसी होती है, वेरिंग करंट होता है, उसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज करती है और डायरेक्शन रिवर्स करती है पीरियोडिकली। वैसे ही यहां पर हमारे पास प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी हम अभी बात करेंगे। ये टाइम के साथ ले लिया, ऊपर हमने यहां पर अलोंग द वाई एक्सिस हमने करंट ले लिया। अब यहां पर जब आप इसे नोटिस करेंगे तो बिगिनिंग में हमारे पास क्या हुआ, जैसे ये जो आर्मेचर है वो इस तरह से है, आर्म ए बी ऐसे मूव किया। अब बिगिनिंग में हमारे पास जो नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल जो है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल क्या है, जो मेरा ये मार्कर जो है इट इज द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है ना, ये 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो इट मींस फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स हुआ 0। एट दैट पॉइंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल इज 0। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स ही 0 होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही ये रोटेशन करने लगी तो देखो इसके क्रॉस जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज होने लगा और ये इस पोजीशन पे। अब जब ये ऐसे पहुंची तो हमारे पास ये कॉइल की प्लेट क्या है, ऐसे है, इसके नॉर्मल क्या हुआ, ऐसे हुआ है। अब एंगल कितना हुआ हमारे पास इस पोजीशन में, जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो ये है इसका एंगल, और तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इट मेक्स एन एंगल 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप नोटिस कर रहे हैं, एक तो हम एंगल से भी बता सकते हैं या फिर हम वैसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे रोटेट करेगी तो फ्लक्स के क्रॉस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगी और इतनी रोटेशन पे क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास करंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहां पर क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। This is known as the peak value of AC, amplitude of AC। और फिर यहां से ये अगेन रोटेट करने लगी, तो ये रोटेट करने लगी तो इसमें क्या क्रॉस क्या हुआ, इसके क्रॉस अगेन फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स हमारे पास क्यों, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स डिक्रीज हो रही है। यहां पर जब ये प्लेन ऑफ कॉइल जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो हमारे पास फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब फ्लक्स 0 हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन 0। इट मींस जैसे जैसे रोटेशन बढ़ती गई तो ये हमारे पास ये डिक्रीज करता है, ये 0 हो गया। ये हमारे पास हाफ रोटेशन हो गई, हाफ रोटेशन। जब हाफ रोटेशन हो जाएगी तो हाफ रोटेशन के बाद आप नोटिस करेंगे ऐसे था मेरे पास पहले ए बी सी डी। अब हाफ रोटेशन के पास ए बी जो है वो मेरे पास कहां चला गया, वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया। जो ए बी मेरे पास फ्रंट में था बिगिनिंग में, वो ए बी कहां चला गया, बैक पे, और सी डी कहां आ गया, फ्रंट पे आ गया। अब ऐसे हो गया, अब सी डी फ्रंट पे आ गया तो ये हमारे पास अब इसकी रोटेशन तो वैसे हो रही है, इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आर्म सीडी क्या है, इट मूव्स इनवर्ड टू मी, ये मेरे पास इनवर्ड मूव करेगी ऐसे। जब मैं यहां से नोटिस कर रहा हूं तो ये ऐसे मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मैंने बताई, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे है। हमने ये, आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेट हमने नॉर्थ इधर साउथ इधर क्यों नहीं, अपनी सुविधा के लिए हमने लिया हुआ है, अपनी सूटेबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने राइट हैंड रूल लगाना है तो आपको बेटर रहता है कि आप डायरेक्शन इस ढंग से, इसलिए मैंने नॉर्थ इधर लिए साउथ, वहां लेंगे तो भी हो जाएगा, कोई डजंट मैटर। ये हमारे पास जब ऐसे डायरेक्शन है, अब ये क्या कर रहा है, आर्म सीडी बाहर की तरफ है, तो सीडी में अब क्या कर रहा है, करंट जो है वो फ्लो करेगा सी टू डी, जैसे बी टू ए था, अब ये सी टू डी। अब देखो ना, कॉन्टैक्ट मूवेबल था, ये मूव करता हुआ यहां से मूव करता हुआ यहां पहुंच गया, ये देखिए कॉन्टैक्ट मूव करता हुआ यहां पहुंच गया। अब करंट सी टू डी ब्रश B2 में एंटर कर रहा है और ये ऐसे है, यहां से करंट ऐसे। अब AB क्या आ रही है, AB वही स्टेप रिपीट हो गया जो CD के लिए, तो AB में करंट ऐसे फ्लो करेगा और हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। हाफ साइकिल के बाद पहले ये था, लेकिन जब ये ऐसे है, अब अगेन हमारे पास फ्लक्स कितना, 0। अब फ्लक्स क्या करने लगा, बढ़ने लगा। जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा, और इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इस पोजीशन पे। अब इट मींस ये हमारे पास ये बढ़ रहा है और ये फिर क्या हो गया, मैक्सिमम, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी दिशा में। ये देखिए पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में करंट है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई लिख सकते हैं आप, यहाँ भी आई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्स हो गया, ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आई नॉट। यहाँ पर हमारे पास ये फिर दोबारा फिर यहाँ से रोटेट करने लगा, तो ये इस तरह से ये यहाँ पर ये,
तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एसी। इसके बाद अगेन फिर आ जाएगा तो फिर वहां हम यहीं पर पहुंच गए, वही पहले वाली सिचुएशन आ गई। अब अगेन कॉइल रोटेट करेगी और ऐसे ये प्रोसेस चला रहता है और डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से आगे चला है। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एसी। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आया था -d∅/dt और इस तरह से ये हमारे पास यहां मैंने छोड़ा था कि हम इसका जब वैल्यू पुट करें तो -NBA/d/dt ऑफ cos ओमेगा t बना था। तो यहां पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, -NBA cos ओमेगा t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास NBA तो कांस्टेंट है, ये बाहर है, कांस्टेंट हमारे पास डिफरेंशिएशन से बाहर आता है। cos ओमेगा t, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin थीटा, यानी cos ओमेगा t का माइनस sin ओमेगा t, लेकिन साथ में ओमेगा t है, ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा +1 मैं आपको डिटेल में करवाया हुआ है। अब इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, NBA ओमेगा sin ओमेगा t। Now due to the rotation of the coil, this EMF becomes maximum and E is equal to E naught। मैक्सिमम कब होगा? हमारे पास वेरिएंट क्या है? साइन थीटा, इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। और ये कब होता है? जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, इसे हमने सपोज 1 दिया हुआ है तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जब हम 1 में पुट करेंगे तो E बन गया n, E की जगह हम पुट करेंगे E नॉट मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी की जगह क्या आएगा? 1, यानी हमारे पास E नॉट क्या है? NBA ओमेगा। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जब हम 1 में पुट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास E इज इक्वल टू E NBA ओमेगा की जगह आ गया E नॉट साइन ओमेगा टी। So this is the instantaneous value of induced EMF across the armature coil। और हम मान लें कि if R is resistance across external circuit या load resistance जो भी आपने अटैच किया है, then induced current क्या आएगा? I इज इक्वल टू E अपॉन R। अब E जो है उसकी वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। अब E नॉट ओवर R यानी पीक वैल्यू ऑफ EMF ओवर रेजिस्टेंस, इट इज EMF ओवर रेजिस्टेंस करंट होता है तो पीक वैल्यू का क्या आएगा? I नॉट आएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ AC व्हिच आई हैव ऑलरेडी शोन बाय मी ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ AC। जब हमने AC को एक्सप्लेन किया तो यही आपको बताया था कि दिस AC कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे। तो ऐसे आपने देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया? AC का प्रोडक्शन किया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो AC जनरेटर है, हमने जनरेटर वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन जनरेटर हियर इज मिसनोमर, वी कांट जनरेट एनर्जी, क्योंकि AC क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी को हम जनरेट नहीं करते। हियर देयर इज हियर द कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर बोलते हैं। और इसकी आगे आपको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर हमारा AC से रिलेटेड है, उस चैप्टर में आपको बताएंगे कि मीन वैल्यू ऑफ AC होती है, फिर आपके पास वर्चुअल वैल्यू होती है, RMS वैल्यू ऑफ AC होती है, जो हाउस होल्ड सप्लाई में होती है वो RMS वैल्यू ऑफ AC होती है, वो उसका जो वैल्यू है वो कैसे पीक वैल्यू से रिलेटेड होती है। हमारे पास 2 फेज AC होती है, 3 फेज AC होती है। जैसे 2 फेज AC है तो 2 फेज AC के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? 2 आर्मेचर कॉइल प्लेस करते हैं इन द फील्ड मैग्नेट, और वो जो आर्मेचर कॉइल है दे आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो जैसे एक कॉइल है तो उसके दूसरे आर्मेचर कॉइल क्या होगी? उसके परपेंडिकुलर रखी होगी, और वो क्या करती है? दोनों रोटेट करती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड होती है परपेंडिकुलर, और जब वो रोटेट करती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण दोनों के क्रॉस करंट प्रोड्यूस होता है। और जो AC जाती है दैट इज 2 फेज AC। अगर आपने 3 फेज AC प्रोड्यूस करनी है तो आप 3 आर्मेचर्स यूज करते हैं, और 3 आर्मेचर्स आप जो आर्मेचर्स है दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो उससे क्या होता है? 3 फेज AC, पॉली फेज AC होती है।
हमारे जैसे जो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की बात करते हैं, जैसे जो एसी की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन, आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड। अब एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है जो हाउस होल्ड सप्लाई में या इन इंडिया 50 हर्ट्स होती है, बट इन अमेरिका यूएसए की हम बात करें वहाँ पे 60 हर्ट्स की सप्लाई करते हैं, 50 की भी होती है, हमारे यहाँ पे 50 की होती है। और एसी की प्रोडक्शन की हम बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है या फिर हमारे पास न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, कोल इंडस्ट्री से हम इसको करते हैं, हीट से हम थर्मल जनरेटर हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एसी जनरेटर का जो बेसिक फिनोमेना है प्रोडक्शन का, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू. The next lecture is concerned with the numericals related to EMI, electromagnetic induction. Very, very important lecture, because the numericals related to EMI are very important according to the NEET or JEE exam. So you must prepare the notes of this. Thanks and have a nice day.